Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Darul Arqam School, Bani Gala campus. Welcome you all in science online class. This is your lecture number 4 and the topic is digestion. Students, in our previous lecture I have told you about the first step, teeth. Because mouth, when we eat something, mouth is the first organ that helps to digest or chew the food. So teeth are very important. I have told you about the teeth and the types of teeth. The second step of digestion, I have told you that the mouth, in mouth there are salivary glands produce saliva. It soften the food, then foods come into food pipe, then in the stomach, then in small intestine, and then in large intestine, and then the large intestine helps to waste the food. Now we are going to read more about the digestion. There are 3 more organs that help to digest our food: pancreas, liver, and gallbladder. Okay, 3 other important organs in our body which help the digestion. The pancreas. What is pancreas? Pancreas is a long flattened organ located in the belly that helps to break down by producing digestive juices that breaks down fats. These juices enter the intestine through the small tube. Okay, जूसेस जो है ये प्रोड्यूस करता है, इसको हम पेंक्रियाज कहते हैं. ये भी हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में फूड में. ठीक है. लिवर. लिवर हैज़ मैनी फंक्शंस. बहुत से फंक्शंस हैं. फर्स्ट, इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड एंड इट स्टोर्स फूड. फिल्टर मीन्स हमारे ब्लड को साफ़ करता है. ठीक है. फिल्टर द ब्लड एंड इट स्टोर्स फूड एनर्जी. It is the largest glandular organ in the body. It produced a digestive juice called bile. लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको हम बाइल कहते हैं. बाइल जो है वो स्टोर होती है इन द गॉल ब्लैडर एंड व्हेन नीडेड रिलीज्ड इनटू पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये स्टोर जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर होती है, लेकिन जब कभी भी हमें ज़रूरत हो तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को जब ज़रूरत होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी आ जाती है. सो दीज आर द 3 मोर organs that help to digest the food. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ. माउथ के अंदर टीथ्स होते हैं जो हेल्प करते हैं च्यू करने में और डाइजेस्ट करने में. माउथ्स के बाद वो हमारे आता है फूड पाइप के अंदर. फूड पाइप के बाद वो आता है हमारे स्टमक के अंदर. फिर स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज ऑल्सो हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड. On the next page, students, there are the eating habits. What are the eating habits that we should follow? Follow these rules and you will find that your digestive system works well. Eat regularly and at fixed times. Go to the toilet every morning. Eat a balanced diet which includes fresh green vegetable and drink plenty of water. Make sure that the food you eat is a clean and well cooked. वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग. मीन्स कि आपको टॉयलेट हर सुबह जाना चाहिए, रेगुलरली फिक्स टाइम पे खाना खाना चाहिए. मीन्स के टाइम पे नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच इन द एट द फिक्स टाइम. वेल कुक्ड और क्लीन फूड खानी चाहिए. और वेरी इंपॉर्टेंट, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग. डू नॉट रन अबाउट, स्टैंड और बिकम एक्साइटेड वाइल ईटिंग. च्यू योर फूड वेल. Rinse your mouth after you eat. What happen if you do not follow these rules? Above rules, if you don't follow these rules, your digestive system will be disturbed. Okay. स्टूडेंट्स, आपको मैंने सलीवा के बारे में बताया था. तो व्हाट इज़ सलीवा? सलीवा आर द एक लिक्विड, वाटरी लिक्विड होते हैं जो हमारे माउथ में हर टाइम प्रेजेंट रहता है. डिड यू नो दैट द एवरेज पर्सन प्रोड्यूसेस 1.5 लीटर ऑफ सलीवा पर डे. यानी कि हर रोज़ हम जो एवरेज पर्सन होता है उसके वो 1.5 लीटर सलीवा प्रोड्यूस करता है. सलीवा कैन बी प्रोड्यूस्ड इवन इफ़ यू डू नॉट हैव एनी फूड इन योर माउथ. Just think eating some delicious food and saliva will produced. You have learned that saliva helps to soften the food in the mouth and start the digestion of starch. मीन्स कि हम कहते हैं ना कि जैसे आपको कि खाने की मज़ेदार चीज़ के बारे में आपके सामने नाम लिया जाए या सोचा जाए तो आपके कहते हैं मुंह में पानी आ जाना. तो ये मुंह में पानी आ जाना, व्हाट इज़ दिस? इट्स अ सलीवा.
ओके, इट्स ए सेलिवा। कि सेलिवा क्या करता है कि सॉफ्टन्स द फूड इन द माउथ एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च की डाइजेशन करता है। यू विल लर्न in the following chapter that the माउथ कंटेन्स मैनी माइक्रोब्स, हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स जर्म्स होते हैं, these can cause diseases, so never spit out saliva or food in any public places. You do not want to pass on any diseases, or do you want to catch anything yourself, means कि हम जब मुंह के अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं तो हमें किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर स्पिट आउट नहीं करना चाहिए कभी भी, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस डिजीज़ेज़। और अगर आप जो ये खुद अपने लिए चाहते हैं कि आप बीमार ना हो, तो आप ये कोशिश करें कि आपकी वजह से दूसरे भी बीमार ना हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।